डैमेज होगा। टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट किसको बोलते हैं? The single membrane bounded vacuoles in the plant is called tonoplast. What do you mean by tonoplast? The single membrane bounded cell is known as vacuoles is known as tonoplast. In this chapter you have to study another definition, that is mycorrhiza. What is mycorrhiza? What is mycorrhiza? Mycorrhiza. Sir, it is a symbiotic symbiotic association of fungus and the angiosperm. root. What is the role of mycorrhiza in absorb? That means in this context, that means in chapter में क्या इसका role है? What is the role of mycorrhiza in transportation in plants? Absorb minerals and ions. So many minerals and iron. This fungus or association, this mycorrhizal association, help to absorb in so many minerals. That's why mycorrhizal association is necessary for the transportation in the plant. Acha, next, plasmolysis definition. What is plasmolysis? Plasmolysis. What is plasmolysis? What is plasmolysis? कल डिस्कस किए थे. What is plasmolysis? एकदम साथ साथ में आप लोग बोलिए. What is plasmolysis? That is shrinkage of protoplasm and its movement away from the cell wall. That means shrinkage of the protoplasm or releasing of the liquid from the cell. As a result of this shrinkage of the protoplasm takes place. This is known as Plasmolysis. This plasmolysis, that means initially whenever takes place, this is called incipient plasmolysis. Incipient plasmolysis. Plasmolysis generally, if a cell placed in a hypertonic solution, then the cell become plasmolyte. Why? Why it is plasma? That means plasmolyzed. Hypertonic solution, hypotonic solution, isotonic solution. My class में भी बहुत बार external concentration of the solution is higher than that is inside called solution. hypertonic. Hypertonic. Plasmolyzed होगा. और hypotonic में अगर किसी सेल को अगर रिप्लेस किया जाएगा तो उसमें एंडोस्मोसिस होगा. That means turgid होगा सेल. और hypertonic solution में अगर प्लेस किया जाए तो this cell will be the flaccid. Flaccid means plasmolyzed. Okay. अच्छा, next apoplastic, sympoplastic, etc. उसमें बस next one cohesion, adhesion, ये सब हो गया. Capillary water. What do you mean by capillary water? Plant requires capillary water. Plant mainly absorb the capillary water from the soil. What do you mean by capillary water? The water molecule present in between the soil particle, this is known as the capillary water. In between the soil particle is known as capillary water. The water which present in between the soil particle. और एक होता है water molecules inside the soil, that is called the hygroscopic water. उसको plant का जरूरत नहीं है. Plant का जरूरत होता है capillary water, that is in between the soil particle. If it is present, then it is called, water is present, then it is called capillary water, and plant require this capillary water. Okay. Now, active and passive transport yesterday discuss किए थे. Hello. Yes, sir. Active में utilization. What do you mean by active transport? Utilization of energy. Oh, cellular transport. energy. That is called the active transport. Active transport is done by the help of the sodium potassium pump. आपका सिलेबस में नहीं है, but sodium and potassium pump. एक साइड में सोडियम, दूसरा मेम्ब्रेन में potassium. That means उसमें how many ions entered inside and how many ions that means exit outside. ये सोडियम एंड पोटेशियम पंप उसको that means finalize करता है. वो सोडियम एंड पोटेशियम पंप, that's why it maintain the membrane transport. Okay. अच्छा, next one,
need for water in plants. Can you say what is the requirement of the water in plants? ये तो general question है. As you know that water is a good solvent and helps in absorption of the mineral nutrients. Water is an excellent solvent and helps in the absorption and minerals. Okay. Water helps in the transport of the mineral nutrients and other solute to the different parts of the plant. अगर water नहीं होगा तो minerals कहाँ से solution? That means transport होगा. Okay. Water provides aqueous medium for the chemical reaction to occur. अगर water नहीं होता तो chemical reaction भी नहीं होता. तो water actually हम लोग जानते हैं photosynthesis, respiration, उसमें भी chemical reaction है. Each and every phenomenon or physiological phenomena are happening, and that creates the that means chemical reaction, or chemical reaction whenever occur, then water is needed. Okay, next one, water, the protoplasm of the cell, protoplasm, that means liquid material present in the cell. It is mainly main composition of this protoplasm is water. Okay, so in which the different molecules remain dissolved or suspended. प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारा मिनरल्स होता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स का साथ वो सस्पेंडेड है और डिसॉल्व होता है. अच्छा, कैन यू से इन हाइड्रोफाइट्स प्लांट स्टोमाटा प्रेजेंट लोअर साइड में ज्यादा होता है या अपर साइड में ज्यादा होता है? कैन यू से स्टोमाटा किस सरफेस में ज्यादा होता है? हाइड्रोफाइट्स, हेलो, बता सकते हो? अपर सरफेस में या लोअर सरफेस में? स्टोमाटा किस में होता है ज्यादा? जिसका पास थोड़ा सा ये होगा वो बता सकते हैं. अपर सरफेस में ज्यादा होगा हाइड्रोफाइट्स. पहले प्लांट का नाम बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स. हेलो, लोअर सरफेस में या अपर सरफेस में? जनरली हम लोग मेसोफाइटिक प्लांट में लोअर सरफेस में स्टोमाटा होता है, अपर सरफेस में कम स्टोमाटा होता है. बट इन केस ऑफ द हाइड्रोफाइट्स उसमें अपर सरफेस में स्टोमाटा ज्यादा होता है, लोअर सरफेस पे कम होता है. क्या रीजन है बताओ तो? हाइड्रोफाइट्स में जनरली क्या होता है ना, उसमें तो वाटर बहुत है, जनरली वाटर में ही ग्रो करता है, कांस्टेंट इवापोरेशन होता है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसीलिए क्या होता है ना, अपर सरफेस में स्टोमाटा बहुत ही ज्यादा होता है. क्यों ना, वाटर ज्यादा रिलीज होगा तो हाइड्रोफाइट्स पानी में ही होता है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता. बट इन केस ऑफ मेसोफाइटिक प्लांट उसमें वाटर ज्यादा होता है. अगर सभी स्टोमाटा अपर सरफेस में हो जाएगा तो सभी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, वाटर लॉस हो जाएगा. इस कारण से स्टोमाटा ज्यादा होता है कहाँ? लोअर सरफेस में. कैक्टस में कौन सरफेस में ज्यादा होता है? ये पर्टिकुलर और स्पेशल टाइप ऑफ दैट मींस स्टोमाटा प्रेजेंट इन कैक्टस प्लांट. कैन यू से व्हिच टाइप ऑफ स्टोमाटा, नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टोमाटा व्हिच प्रेजेंट इन द कैक्टस प्लांट? बता सकते हो? हेलो, 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 हेलो. सनकेन स्टोमाटा, गुनिका, हेलो. Yes, sir. Yes, sir. सनकेन स्टोमाटा याद रखोगे, लिख, जहां जहां लिखने का जरूरत है लिखो, ठीक है. हम बोर्ड इसीलिए यूज नहीं कर रहे हैं क्यों ना बोर्ड पे कल अगले 2-3 दिन बाद में हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पर जैसे पहले लेते थे व्हाइट बोर्ड में उस टाइप का सिस्टम बना रहा है, तो उस समय आपको सब चीज लिख देंगे. या जो भी है क्लासेस होगा, अभी 2-3 दिन ऐसा ही चल रहा है. जो भी लेना है मतलब इस टाइप से भरवाली इंटरेक्शन हो रहा है. नेक्स्ट वन. अच्छा, एक चीज बताओ तो, बुलीफॉर्म स्टोमाटा, बुलीफॉर्म सेल्स पाया जाता है मोनोकॉट प्लांट में. मैंने शायद क्लास में आप लोगों को बताया था. इनके शब्द समर डेज उसमें जो ग्रासेस होता है ना, दैट मीन्स बैम्बो लीव्स को देखते हैं जो रोलिंग होता है,
बेम्बोस का लीव्स को रोलिंग होता है, उसमें प्रेजेंट होता है पर्टिकुलर सेल जिसका बोलते हैं बुलीफॉर्म सेल्स। व्हाट इज द रोल ऑफ बुलीफॉर्म सेल? दैट मीन्स वो रोलिंग करता है लीफ को। किस कारण से रोलिंग होता है समर डेज में? रीजन बिहाइंड व्हाई द रोलिंग ऑफ द लीव्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द समर डेज इन बैम्बो प्लांट्स। Why the rolling of leaves takes place the summer days in bamboo leaves? क्या कारण है जो leaves roll हो जाता है? Sir, excess amount of water release ना हो। हाँ, इसमें सरफेस एरिया कम हो जाएगा। वो बैम्बो Yes, sir. प्लांट जनरली क्या होता है, ग्रास फैमिली का है, और ग्रास फैमिली है तो नेचुरली उतना बड़ा हो जाता है। तो बैम्बो हम लोग सोचते ट्री है, नहीं है, ग्रास फैमिली का। बैम्बो इज द एग्जांपल ऑफ द ग्रास। उसमें जनरली ग्रास में अगर फील्ड में देखा जाए वो भी रोलिंग होता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो जनरली क्या होगा, उसका इवापोरेशन लॉस ऑफ वाटर कम हो जाएगा। दैट मीन्स इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर। ओके, अच्छा, तो इसके बाद इस चैप्टर में जनरली हाँ, इम्बाइबिशन में 2 कंडीशंस आर नेसेसरी। ये बोलना भूल गए थे। इम्बाइबिशन का डेफिनेशन होता है दैट मींस एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द सरफेस। उसका जो अपना सरफेस है, जैसे ग्राम सीड्स होता है, लेकिन क्या क्या कंडीशन होता है? नंबर 1 में water potential gradient between the surface of the adsorbent, water potential gradient between the surface of the adsorbent and the liquid, ये हो गया। सेकेंड वन, affinity between adsorbent of the imbibed liquid, वो लिक्विड का साथ और जो लेयर है उसका साथ affinity होना चाहिए, अदरवाइज वो लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। उसका ऊपर में जो लेयर है ट्रांसफर ग्राम सीड्स का ऊपर में जो ट्रांसपेरेंट लेयर है उसका साथ वाटर का मॉलिक्यूल का एफिनिटी होना चाहिए। एफिनिटी मींस उसको एक्सेप्ट करे, अदरवाइज इम्बाइबिशन प्रोसेस नहीं होगा। सो ये 2 कंडीशन। और पहला कंडीशन, वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट एंड द लिक्विड। दोनों लिक्विड और जो उसका पास जो कवरिंग है ग्राम सीड्स का, उसमें वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट होना चाहिए। एक में ज्यादा प्रेशर होना चाहिए, एक में कम होना चाहिए, तभी वो एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है? प्लांट में तो बहुत डिस्टेंस होता है, 30 फीट 40 फीट। इसमें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस प्लांट नॉट टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन। इसमें तो डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता है। डिफ्यूजन प्रोसेस तो स्लो प्रोसेस होता है। The movement of the molecules of diffusion across a typical plant cell about 50 millimeter तक हो सकता है। ठीक है, लेकिन वाटर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स इसमें ट्रांसपोर्ट होता है एक साथ में, जिसको बोलते हैं बल्क फ्लो या मास फ्लो हाइपोथेसिस, जिसको बोलते हैं, मैंने थोड़ा देर पहले डिस्कस किए थे, मास फ्लो हाइपोथेसिस। इस मास फ्लो में क्या है ना, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और उस प्रेशर से क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में होता है। ठीक है। अच्छा, हम लोगों का जो बॉडी में, ह्यूमन बींग्स का बॉडी में जो वेन आर्टरीज, वेन्यूल्स, आर्ट्रियोल्स ये सब है, तो प्लांट बॉडी में क्या होता है ना, जाइलम एंड फ्लोएम। Each and every parts of the plant, xylem and phloems are present. तो xylem water conducting tissues आपका पता है, जूनियर क्लास में आप स्टडी किया। phloem is minerals and amino acid, ये tissues that means transport करता है। But what are the basic difference between xylem and phloem? Which is dead and which is that is living? Can you say? जाइलम एंड फ्लोएम, उसमें से कौन डेड है और कौन लिविंग है? जाइलम डेड सेल होता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, बट एक्सेप्शन उसमें भी है। अब फ्लोएम लिविंग सेल होता है ज्यादा से ज्यादा, बट उसमें भी डेड सेल पाया जाता है। तो दिस आर द डिफरेंसेस। जाइलम एक ही तरफ से ट्रांसपोर्ट होता है,
but phloem का ट्रांसपोर्ट bidirectional, but in case of the xylem transport is unidirectional, एक ही तरफ डायरेक्शन में फ्लो होगा, और phloem transport that means bidirectional. Bidirectional means क्या होगा? That means अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कल नेक्स्ट टुमारो आई विल स्टार्ट अनदर चैप्टर दैट इज मिनरल न्यूट्रिशन। हेलो, मिनरल Yes. न्यूट्रिशन, इसके बाद चैप्टर है आपका मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसी को पता है व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? हेलो, हाइड्रोपोनिक्स का आइडिया है कुछ? So technique of growing of plants in a nutrient solution is called hydroponics. That means we can say the soilless raising of the plants is called hydroponics. The plant can grow without soil, or raising of the plants without soil is called hydroponics. वो नेक्स्ट चैप्टर में है, आपको पता है उससे मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, symptoms of deficiency, symptoms of different molecules, that means ions, etc. Nitrogen fixation, ammonification, nitrogen nitrification, denitrification, ये सब है आपका उस चैप्टर में। और मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में आपको ये चीज है, माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिटेल्स पढ़ना है, कौन मिनरल्स का डेफिशिएंसी से कौन ये होता है।